دوستو بہت ہی مزے کی لانگ ایپیسوڈ کیا یاد کرو گے؟ بس آپ کے ویڈیو پر لائک اور چینل پر سبسکرائب مجھے لانگ ویڈیو بنانے پر مجبور کرتے ہیں۔ سب دوست جلدی جلدی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ چلتے ہیں آج کے مزیدار ایپیسوڈ کی طرف۔ بھابھی کی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں بھابھی کو دیکھوں، اس کے باوجود نظر انداز کر کے واپس پلٹا۔ ابھی ہنستے ہوئے میرے جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، لو جی یاسر بھی آ گیا۔ یار نیچے آ جاؤ، وہاں کھڑے چھپ چھپ کر ہماری باتیں سن رہے ہو۔ بھابھی کے بولنے کی وجہ سے سب کی توجہ میری جانب ہو گئی، جس کی وجہ سے مجبوراً مجھے غصے کا کڑوا گھونٹ نکل کر بناوٹی مسکراہٹ چہرے پر لا کر نیچے جانا پڑا۔ نیچے پہنچ کر میں اجتماعی سلام کرتے ہوئے آنٹی کے پاس خالی جگہ پر بیٹھ گیا۔ بھابھی میری جانب دیکھ کر بولی، یاسر تو بھائی بڑا آدمی بننے کے بعد لفٹ ہی نہیں کرواتا۔ جناب کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اپنوں کے ساتھ بھی 2 منٹ بیٹھ کر دکھ سکھ کی باتیں کر لے۔ میرے کچھ پہلے صوفی بول پڑی، بھابھی باسر سارا دن تو گھر پر ہی ہوتا ہے، اس نے کہا جاتا ہے۔ ویسے بھی اب کے دکھ سکھ کے ساتھی قیصر بھائی پر وقت اب کے پاس ہی تو ہوتے ہیں، پھر بھی اب کو دکھ سکھ کے لیے یاسر کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ صوفی نے اس انداز میں بھابھی کے منہ پر جوتا مارا تھا کہ سوائے بھابھی کے سب کھلکھلا کر ہنس پڑے، جبکہ قیصر ہنستے ہوئے بھابھی کی پیٹھ تھپ تھپا کر بولا، بس آرام سے۔ صوفی نے خود بھی ہنستے ہوئے بھابھی کو منہ توڑ جواب دیا تھا تاکہ کسی کو محسوس بھی نہ ہو کہ بھابھی کی چھتری بور ہی ہے۔ صوفی کا جواب سن کر اور بھا کی تنزیہ ٹکور دینے کے بعد بھابھی کے چہرے پر سخت ناگواری کی لہر دوڑ آئی۔ بھابھی تنزیہ انداز میں بولی، کیوں جی یاسر پر میرا کوئی حق نہیں ہے؟ صوفی کہاں چپ رہنے والی تھی، اس نے تو پہلے سے جیسے جواب گڑ رکھا ہوا تھا۔ بھابھی کی بات مکمل ہوتے ہی صوفی جھٹ سے بولی، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کا یاسر پر حق نہیں ہے، بلکہ اب گھر کی بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ یاسر کی بھابھی جان بھی ہے۔ اس رشتے سے یاسر پر سب سے زیادہ آپ کا ہی حق بنتا ہے، کیونکہ بڑی بھابھی ماں جیسی ہوتی ہے اور ماں سے بیٹے کا حق تو کوئی نہیں چھین سکتا۔ صوفی کی بات نے جہاں بھابھی کو میٹھی مرچیں لگائی تھی، وہیں میں بھی شرم سے پانی پانی ہوتے نیچے سر جھکا کر پیروں کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بھابھی کے چہرے کی کیا کیفیت تھی مجھے اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ مجھے تو اپنی پڑی تھی کہ میں کس منہ سے سر اٹھا کر بھابھی کا صوفی کا سامنا کروں۔ صوفی نے دوسرا بال مارتے ہی تیسری بال پر اکر مارتے ہوئے کلین بولڈ کرتے ہوئے کہا، کیوں یاسر میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ صوفی کی بات جیسے مجھ پر ایٹم بم بن کر گری ہو۔ میں نہ تو ہاں کر سکتا تھا نہ ہی نہ کر سکتا تھا۔ اس بار مجھے صوفی پر غصہ آنے لگا تھا کہ اس نے وہ رشتہ داری کا چیڑ کھول لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ صوفی دوبارہ مجھ سے اقرار نامہ طلب کرتی، آنٹی بروشت انٹری مارتے ہوئے بولی، تم کیا فضول باتوں کو لے کر بیٹھ گئی ہو؟ یاسر تھکا ہوا آیا ہے۔ صوفی جھٹ سے بولی، آپ کو اپنے ڈالے کی بڑی فکر ہے، آپ کا لالا کھیتوں جیسے میں ہل چلا کر آیا ہو۔ آنٹی مسکراتی ہوئی میری کمر میں بازو ڈال کر مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی، فکر کیوں کر رہی ہو؟ میرا ایک ہی تو بیٹا ہے۔ آنٹی کی بات سن کر مجھ میں سر اٹھانے کی ہمت ہوئی، کیونکہ آنٹی نے موضوع کا رخ موڑ کر مجھے کچھ بولنے کا موقع فراہم کر دیا تھا۔ میں لاڈلا بنتے ہوئے آنٹی کے کندھے پر سر رکھ کر صوفی کی جانب دیکھ کر اسے منہ چڑھاتے ہوئے بولا، بس اب سکون ہو گیا؟ صوفی مجھے منہ چڑھاتے ہوئے بولی، مجھے پہلے بھی سکون تھا۔ پہلے کون سا میں رو رہی تھی؟ اس دوران سامنے بیٹھی بھابھی پر میری نظر پڑی تو بھابھی کی شکل دیکھنے کے لائق تھی۔ بھابھی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاں سے غائب ہونے میں ایک سیکنڈ نہ لگاتی۔ آخر بھابھی سے رہا نہیں گیا، وہ ایک بار پھر تنزیہ انداز میں بولی، یاسر جن کا بیٹا ہے ان کے ساتھ ہی چپک کر بیٹھا رہتا ہے۔ جب سے آپ لوگ یہاں شفٹ ہوئے ہو یاسر کا تو وہاں دل ہی نہیں لگتا، وہاں تو صرف سونے کے لیے جاتا ہے۔ اگر جاگ بھی رہا ہو تو جناب صاحب اپنے کمرے میں بند ہوتے ہیں۔ اس بار قیصر تھوڑا تلخ لہجے میں بولا، عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ لگتا ہے تمہاری نظر اور یادداشت بھی کمزور ہو گئی ہے۔ کتنی بار تو یاسر نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا ہے۔ بھا کی بات سنتی ہی بھابھی کھڑی ہوئی اور بھا کو گھورتے ہوئے بولی، آپ کو تو بس میری بے عزتی کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ کہہ کر بھابھی مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھی ہی تھی کہ بھابھی ایک دم غصے میں آ کر کھڑا ہو کر بھابھی کی جانب جانے لگا۔ میں پھرتی سے کھڑا ہوا اور بھا کے آگے ہو کر بھا کو پکڑ کر واپس صوفے کی جانب لے جاتے ہوئے بولا، بھا آپ کو کیا ہو گیا یار؟ سب اچھے بھلے بیٹھے ہنس کھیل رہے تھے اور ماحول یوں اچانک سے خراب کر دیا۔
भा गुस्से से लाल पीला होते हुए भाभी को गाली देते देते रुक गया। शायद इसे आंटी लोगों की मौजूदगी का एहसास हो गया था। भा को मैंने मुश्किल से बल्कि जबरदस्ती वापस सोफे पर बिठाते हुए खुद भी भा के साथ बैठ गया। जबकि भाभी को यूं रोते हुए जाते देखकर आंटी ने 2-3 दफा भाभी को आवाज देते हुए वापस आने का कहा। बल्कि आंटी उठकर भाभी के पीछे जाने लगी तो भा कैसर आंटी को मना करते हुए बोला, खाला अब बैठ जाएं, दफ करें, जाने दें इस शैतान औरत को, इससे किसी का सुकून बर्दाश्त नहीं होता। आज करता हूं उसकी तबीयत साफ। ये जबान से समझने वाली नस्ल नहीं है। इतनी देर में भाभी तेज तेज सीढ़ियां चढ़ती हुई नजरों से ओझल हो चुकी थी। कुछ देर संजीदगी का माहौल रहा। माहौल की संजीदगी को देखते हुए डालजीब और माही वहां से उठकर अपने कमरे में चली गईं। भा का जारहाना अंदाज देखकर और उसकी धमकी आमेज बातें सुनकर आंटी और मैं भा कैसर को मनाने लगे कि मारपेट की बजाय प्यार से भाभी को समझाएं। वो समझदार पढ़ी लिखी हैं, समझ जाएंगी। भा बोला, ये पढ़ी लिखी जाहिल औरत है। मैंने पहले भी महसूस किया है कि ये आप लोगों से खास तौर पर सूफी पत्थर के साथ दिल में बुग़्ज़ रखती है और बात बात पर तंज करती है। भा की बात सुनकर मुझे खुशी भी हुई कि भा को कुछ बताने से पहले ही भाभी की ज़हनियत का इल्म हो गया है, और उसकी सबसे बड़ी वजह भा कैसर की अभी में अदम दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से भा को भाभी की खामियां नजर आ गई थी। यही अगर भा कैसर भाभी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता होता तो शायद भा कैसर भी भाभी की बातों में भाभी की तरह खुद भी आंटी लोगों के मुतालिक दिल में बुग़्ज़ पाल लेता। कुछ देर बैठने के बाद भा कैसर रुखसत हो गया। जाते हुए भी आंटी ने भा से बारहा दरख्वास्त की कि वो जाकर शाइस्ता को कुछ न कहे। भा के जाने के बाद में आंटी से मुखातिब होते हुए बोला, आंटी आपको भाभी की आदत का इल्म तो है कि वो शैतानी ज़हनियत की मालिक है, फिर आपने इसे क्यों उधर बुलाया था? आंटी बोली, बेटा मैंने इसे कब बुलाया था? वो खुद ही आ गई थी कि मैं घर पर अकेली पूरी हो रही थी, इसलिए आप लोगों के यहाँ आ गई। अब घर आए बंदे की मुंह भर कर तो नहीं कहा जा सकता कि तुम क्यों आई हो। ये कहकर आंटी तशवीश का इजहार करते हुए बोली, बेटा मुझे एक बात की बहुत टेंशन हो रही है। मैं चौंक कर बोला, किस बात की आंटी? आंटी बोली, यासिर बेटा मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने भी थोड़ी बहुत दुनिया देखी है। तुम्हारी बात ठीक है कि शाइस्ता थोड़ी दिमागी किस्म की लड़की है, मगर उसका सूफी के साथ बार बार बिलावजा उलझना और उसकी हर बात पर तंज करना ये ठीक नहीं है। कल को तुम दोनों की शादी होगी, जाहिर है शादी के बाद सूफी भी इस घर में रहेगी। ऐसे में दोनों का एक जगह रहना रोज के झगड़ों का सबब बन सकता है। जो औरत अभी अपनी होने वाली देवरानी के बारे में दिल में इतना ज्यादा बुग़्ज़ रखती है, सोचो कल को जब सूफी को इसके साथ रहना पड़ेगा तो वो किस हद तक जा सकती है। आंटी की बात सुनकर मैं मुस्कुराते हुए कहा, आंटी जो बातें आपके जहन में चल रही हैं और जिन बातों को लेकर आप परेशान हो रही हैं, मैं इन सब बातों पर पहले ही गौर करके इस मामले से बचने के लिए पूरा बंदोबस्त कर चुका हूँ। आंटी बोली, क्या मतलब? कैसा बंदोबस्त कर चुके हो? मैं उठकर आंटी के पास आकर बैठते हुए आंटी का हाथ पकड़कर बोला, आप मुझे अपना बेटा समझती हैं या होने वाला दामाद? आंटी मसनूई गुस्से से मुझे देखते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कभी तुम्हें दामाद की नज़र से देखा है? कभी तुम्हें इस बात का एहसास होने दिया है? मैंने कहा, तो फिर अपने बेटे पर यकीन रखें। बेशक सूफी को अपने जन्म दिया है, आप इसकी माँ हैं। जितनी आपको इसकी फिक्र हो सकती है किसी को नहीं। ये कहकर मैंने सूफी की जानिब देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, और आप इतनी इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि मैं आपकी इस पागल बेटी से पागलों की तरह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। इसलिए आप इस बात से बेफिक्र हो जाएं कि भाभी को सूफी को कुछ कहने का मौका मिलेगा। मेरी बात खत्म होते ही सूफी मुझे घोर कर मुंह चढ़ाते हुए शर्मा कर जल्दी से वहां से उठकर चली गई। शायद वो मेरे रोमांटिक अंदाज से शर्मा गई थी। मैं मुस्कुराता हुआ इसे जाता हुआ देखने लगा। आंटी बोली, यासिर बेटा मुझे सब पता है, और तुम्हारे बारे में तो रत्ती बराबर भी किसी किस्म की परेशानी नहीं है। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप ये भी कहना चाह रही हैं कि भाभी सूफी के साथ रहेगी तो भाभी सूफी को परेशान करती रहेगी? आंटी ने हिमम कहते हुए इस बात में सर हिलाया। मैंने कहा, भाभी तब सूफी को परेशान करेगी जब भाभी सूफी के पास रहेगी। ये वाला पोर्शन मैंने इसीलिए लिया है कि शादी के बाद हम दोनों आपके साथ रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर मैं भाभी को यहाँ आने से सख्ती से मना कर सकता हूँ।
आंटी बोली, बेटा तुम्हारा फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, मगर शादी के बाद मैं यहाँ नहीं रह सकती। ओ मैं मुंह बिसूरते हुए बोला, यानी फिर अब मुझे बेटे की बजाय दामाद का दर्जा देंगी? आंटी लाचारगी से बोली, यासिर बेटा तुम समझने की कोशिश करो कि अब तो बात और है। शादी के बाद मैं अपनी बेटी के यहाँ मुस्तकिल कयाम कैसे कर सकती हूँ? आंटी को मुतमईन करने में दुश्वारी महसूस करके मैंने मौजू बदलते हुए कहा, चली जब मौका आएगा तब एक बेटा खुद ही अपनी माँ को मिला लेगा, मगर आपको जो भाभी वाला खदशा था वो मैंने दूर कर दिया है। बस अब आप एक बात अपने दिमाग में बिठा लें कि इस कोठी के दोनों पोर्शन की मालिक सिर्फ सूफी है। भाभी का आभा कैसर का इस कोठी से कुछ लेना देना नहीं है। वैसे भी हो सकता है हालात बेहतर हों तो भा कैसर भाभी को लेकर गांव वाले घर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वैसे भी भा कैसर का यहाँ दिल नहीं लग रहा। ये मेरा हतमी फैसला सुनकर आंटी मेरे कंधे पर हाथ फेरते हुए मुझे दुआएं देने लग गई। बातों के दौरान मैंने आंटी से भी कंफर्म कर लिया कि भाभी जब आई थी तब वो सूफी के कमरे में तो नहीं गई या फिर इससे अकेले में तो नहीं मिली। आंटी का एक जवाब सुनकर तो मुझे तसल्ली हो गई कि भाभी जब से आई थी वो ड्राइंग रूम में सबके बीच ही बैठी हुई थी। मगर जब आंटी ने ये बताया कि भाभी ने आते ही तुम्हारे साथ अकेली गुलजेब के जाने की बात छेड़ दी थी, तो आंटी की बात सुनकर मेरा अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ कि भाभी मौका देखकर शैतानी करने आई थी। मगर आंटी ने मुझे तसल्ली दे दी कि उन्होंने भाभी का मुंह ये कहकर बंद कर दिया था कि मैंने ही इसे भेजा है। कुछ देर बाद माही लोग वापस मेरे पास आकर बैठ गए। दोपहर का खाना भी मैंने वहीं खाया। शाम तक मैं वहीं बैठा सबके साथ खुशगप्पियों में मसरूफ रहा। इस दौरान गुलजेब अपनी आदत के मुताबिक सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तिफा करती रही थी। गुलजेब में आज मैंने एक मुनफरिद चीज देखी थी कि वो पहले से ज्यादा खुशगवार मोड के साथ साथ चंचल तबीयत में नजर आ रही थी, और कई बार मेरी इसके साथ नजरें टकराईं तो इसके चेहरे के तासुरात मुझे कई खुशफहमियों में मुब्तला कर गए थे। जितना वहां का खुशगवार माहौल बना हुआ था वहां से जाने को दिल तो नहीं कर रहा था, मगर मेरा ज्यादा देर वहां रहना मुनासिब भी नहीं था। इसमें शाम के 6 बजे के करीब आंटी से इजाजत लेकर वापस आ गया। कमरे में आकर मैं बेड पर लेटकर आंखें बंद करके आज के होने वाले वाकयात को जहन में दोहराते हुए ज़ेर लब मुस्करा रहा था, क्योंकि मेरे ख्यालों का महवर कुछ और नहीं बल्कि गुलजेब से होने वाली आज की हुसैन लम्हों पर मुश्तमिल मुलाकात के अहम लम्हात थे। शायद इतना मैंने प्रैक्टिकल में इंजॉय न किया हो जितना आंखें बंद करके एक एक लम्हे को याद करते हुए इंजॉय कर रहा था। जानलेवा जोबन के जलवे का एहसास, एक एक लम्हा, एक एक सीन, एक एक लम्हे का एहसास बार बार बारीक बीनी से अपने जहन में दोहराते हुए बंद आंखों से इस मंजर को कलम की तरह देख रहा था। मुझे इस कदर अच्छा लग रहा था कि मेरे वजूद के जिस जिस हिस्से को गुलजेब के जिस्म ने छुआ था, मैं बेखुदी में अपने जिस्म के इस एक एक हिस्से पर हाथ फेरते हुए उन हसूहे को खुश कर रहा था। इतना बारीक बीनी से मैंने तब नहीं सोचा होगा जब नया नया इसके हसन नसीब हो रहा था। गुलजेब के बारे में तो मैं सिहर में जकड़ा गया था, जितना आज पागलों दीवानों की तरह इसके बारे में सोच रहा था शायद तब इसे बाजुओं में भींचकर उसको अपने साथ चिपकाने का मौका मुयस्सर नहीं हुआ था, इसलिए कभी छूने का मौका नहीं मिला था। बंद कमरे में खलवत का माहौल था, इसलिए मैं दिल खोलकर अपने ख्यालात को इमेज करते हुए दिमाग के साथ साथ अपने हाथों और चेहरे के एक्सप्रेशन से भरपूर इंजॉय कर रहा था। गांव से वापस आने के बाद मुझे देखकर गुलजेब का जिस तरह रिएक्शन आ रहा था, इससे अपने तजर्बा के मुताबिक मैंने ये हतमी नतीजा अखज़ कर लिया था कि गुलजेब के लिए जिस तरह मेरे जज्बात रहे थे, गुलजेब का खुद का भी यही हाल था। मतलब दोनों जानिब से चिंगारी शोलों में तब्दील हो चुकी थी। बस अब इंतजार था तो दोबारा किसी मौका का जब एक बार फिर मौका मिले। गुलजेब के बारे में सोचते हुए मैंने ये भी फैसला कर लिया था कि जब भी गुलजेब अपनी रजामंदी दिखाएगी तभी काम होगा, और मैंने ये हक पूरी ईमानदारी और खुलूस के साथ अदा करने का अज़्म करते हुए बाजू लंबे करके जानदार अंगड़ाई ली और साथ ही घूमकर औंधे मुन हो गया। अगले दिन सुबह उठकर नाश्ता वगैरह करके मैं भा के साथ बैठा खुशगप्पियों में मसरूफ था। इसी दौरान मेरे करीब शेल पर पड़े इंटरकॉम की बैल बजी। इंटरकॉम बैरूनी गेट पर लगाया हुआ था ताकि वहीं से राब्ता करके आने वाले के बारे में मालूमात फराहम कर दी जाए। मैंने रिसीवर लगाकर पहले कैसे सलाम करने के बाद बोला, साहिब जी जुनेद नामी लड़का आपसे मिलना चाहता है। साथ ही डाकिये ने जुनेद का तारुफ भी करवा दिया कि आपकी दुकान वाला लड़का है।
क्योंकि काका जुनेद को जानता भी था कि इसका मेरी दुकान के बाहर स्टॉल लगा हुआ है। और जब मैं इंडिया में था तब भी जुनेद कई बार घर भी आ चुका था। मैंने कहा, अकेला है या इसके साथ कोई और भी है? काका बोला, अकेला है। मैंने कहा, इसे अंदर भेज दो। ये कहकर मैंने रिसीवर रख कर भा को जुनेद की आमद बता दी ताकि वो भाभी को इन्फॉर्म कर दे कि वो बाबर मत कुछ ही देर बाद जुनेद ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। मैं और भा बड़ी गर्मजोशी से जुनेद को मिले। हाल अहवाल के बाद में इशारतना इससे आने की वजह दरियाफ्त की तो जुनेद ने भा की मौजूदगी में बच्चा चाहत का इजहार किया। मैं फौरन मौजू को मुड़कर जुनेद से उधर उधर की बातें करता रहा। कुछ देर का वक्फा देने के बाद मैंने बेतकल्लुफी का मुजाहरा करते हुए जुनेद को कहा, चल आजा तुझे अपना कमरा दिखाऊं। जुनेद को कमरे में ले जाने का मकसद सिर्फ प्राइवेसी रखना था, जो जुनेद की डिमांड थी, क्योंकि मैं भा को ये तो नहीं कह सकता था कि हमने कोई ज़रूरी बात करनी है। अब कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दें। मेरा जो भी स्टेटस बन चुका था, मगर भा ने साथ ही जूता उतार लेना था कि ऐसी कौन सी तुम्हारी ज़रूरी बात है। इसलिए मैंने चालाकी का मुजाहरा करते हुए जुनेद को कमरा दिखाने के बहाने इसे अपने कमरे में ले आया। कमरे में आकर जुनेद आंखें फाड़े कमरे की शानदार सेटिंग को देखने लगा। मैं जुनेद को सोफे पर बैठने का इशारा करके खुद उसके साथ बैठ गया। जुनेद यूं सिमट कर बड़े मोहतात अंदाज में बैठा था जैसे वो पता नहीं कितनी बड़ी शख्सियत से मिलने आया हो। जुनेद को यूं कंफ्यूजन का शिकार देखकर मैं मुस्कुराते हुए बोला, यार तुम घबराते हुए क्यों हो? ये तुम्हारा अपना घर है। लोगों की नज़रों में मेरा स्टेटस बदल गया, मगर हम आज भी वही अच्छे दोस्त हैं जैसे पहले थे। तुम्हारे लिए मैं वही पुराना यासिर हूं, इसलिए खिल कर बैठो। और जुनेद हाथों को मिलते हुए बोला, यार ये तो तुम्हारा बड़ापन है कि तुम मुझे इतनी इज्जत दे रहे हो, वरना आज के दौर में जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं वो बंदे को बंदा नहीं समझते। मैं कहकहा लगाकर जुनेद के कंधे पर बाजू रखकर इसे अपनी जानिब खींचते हुए बोला, ओ नहीं यार, मैं ऐसा नहीं हूं। जो ऐसा करते हैं वो कम ज़र्फ लोग होते हैं। तुम मेरी तबीयत से अच्छे से वाकिफ हो कि यासिर ने ना पहले कभी पैसों को अहमियत दी थी और ना ही आज दे रहा हूं। मेरे नज़दीक सबसे कीमती और अहमियत के हामिल मेरे खास दोस्त अहबाब हैं, और उन दोस्तों में तुम भी एक अहम दोस्त हो। मैं आज जिस मकाम पर हूं वो सब अपने दोस्तों की वजह से भी हूं। कुछ देर हमारे दरमियान अलिफामोशनल बातें होती रही। इसके बाद मैंने जुनेद की इज़्दिवाजी ज़िंदगी और उसके घरेलू मामलात की खैरियत दरियाफ्त करने के बाद असल मौजू पर आते हुए इससे आने की वजह पूछी। जुनेद बोला, यार इस दिन जब तुम बाजार आए थे मैंने तुमसे इस दिन ही इस मौजू पर बात करनी थी, मगर तब तुम जल्दी में थे और वो मौका भी नहीं था। इसलिए मैंने सोचा घर पर जाकर तफसील से बात करूंगा। मैं चौंक कर बोला, क्या बात है? सब खैरियत तो है? जुनेद बोला, यार जिस दिन तुम भाभी लोगों को लेकर वापस घर आए थे इसके अगले दिन एक लड़की मेरे पास आई थी। पहले वो 3-4 बार दुकान से आगे गुजरी और गुजरते वक्त वो बड़े गौर से दुकान का बोर्ड देख रही थी। फिर वो दोबारा गुजरी तो मैंने इसे आवाज़ देते हुए पूछ ही लिया कि खैरियत है। अब बार बार दुकान को देख रही है। मेरे पूछने पर लड़की मेरे करीब आकर तुम्हारे बारे में पूछने लग गई। जुनेद की बात सुनकर मैं मजीद तवज्जो से इसकी जानिब मुतवज्जे होकर बोला, क्या पूछ रही थी? जुनेद बोला, यही कि दुकान क्यों बंद है और तुम दुकान पर किस वजह से नहीं आ रहे। तुम्हारे घर का फ़ोन नंबर है तो वो दे दो। पहले तो मैं इसे तुम्हारी कोई सहेली या फिर कस्टमर समझता रहा, मगर जब इसने तुम्हारे घर का एड्रेस और नंबर मांगा तो तब मुझे शक गुजरा कि ये इतनी पर्सनल मालूमात क्यों मांग रही है। कहीं कोई मसला मसाइल ना हो जिसकी वजह से ये तुम्हारे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मांग रही है। जुनेद की बात सुनकर मैं चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, क्या तुमने पहले कभी इसे दुकान पर आते जाते या फिर बाजार से गुजरते हुए देखा है? जुनेद बोला, नहीं यार, शक इसीलिए तो मुझे गुजरा था कि मैंने इसे देखा ही पहली दफ़ा है, वरना तुम तो जानते हो मेरा बाजार के साथ कितना पुराना ताल्लुक है। हर नए पुराने चेहरे से वाकिफ हूँ, और ख़ासकर जब से मैंने दुकान के बाहर स्टॉल लगाया है तब से तो तकरीबन हर राह गुजरते कस्टमर पर मेरी तवज्जो होती है। अगर वो पहले आती जाती होती तो मैं लाजमी इसे पहचान जाता। जुनेद की बात सुनकर मुझे भी तशवीश होने लगी। मैंने कहा, तुमने इसे करीब से देखा है? क्या तुम उसका खदोखाल अलहदा बता सकते हो? और क्या वो अकेली आई थी या इसके साथ भी कोई था? जुनेद बोला, वो अकेली थी और उसका कद कोई 5.5 फुट के करीब था।
इसने सर पर सकाफ लेकर चेहरे पर निकाब किया हुआ था। कद काला जसामत और लब लहजे से वो कोई 25 साल के करीब जवान खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की लग रही थी और लिबास से भी अच्छी खाते पीते घराने की नजर आ रही थी। ये कहकर जुनेद एकदम चौंकते हुए बोला, हाँ याद आया एक और चीज अब की मशकूक थी जिस पर मुझे ज्यादा शक पड़ा। ओ मैं जल्दी से बोला, कौन सी? जुनेद बोला। इसकी बोली का अंदाज बयान हमारे इलाके का नहीं था, क्योंकि अगर वो इलाके की होती तो यकीनन इसकी बात करने का अंदाज भी हमारे जैसा होना था, बल्कि इसके लहजे से सराय की झलक नुमायां हो रही थी। मतलब जैसे हकीकत में वो सराय की हो मगर उर्दू लहजा इख्तियार करने की कोशिश कर रही हो। जुनेद की जुबान और इतनी बारीक तफसील से इस लड़की को जज करने पर मैं इसकी तारीफ किए बगैर ना रह सका। मैं जुनेद का कंधा थपथपाते हुए बोला, वह शहजादे क्या दिमाग है तेरा, तुझे तो इंटेलिजेंस में होना चाहिए था। ये कहकर मैंने कहा, तुमने फिर इसे क्या जवाब दिया? जुनेद बोला, पहले तो मैं इसे दुकान बंद होने पर कोई बहाना बनाने लगा था, मगर उसकी मशकूक बातें सुनकर मैंने इसे ये कहा कि पहली बात तो मैं दुकान के मालिक को यानी तुम्हें ज़ाती तौर पर नहीं जानता, क्योंकि मुझे थोड़ा अरसा ही हुआ है यहाँ स्टॉल लगाने हुए, इसलिए ना तो मुझे तुम्हारे घर का पता है और ना ही तुम्हारे घर के नंबर का इल्म है और ना ही मुझे ये मालूम है कि दुकान क्यों बंद है। फिर इसने ये पूछा कि कितने दिनों से दुकान बंद है, तो मैंने कहा 3-4 दिन हो गए हैं। आखिर में जब मैंने इससे पूछा कि आपका क्या नाम है, तो इसने ये कहा कि मुझे शॉपिंग करनी थी। सुना है कि इस दुकान वाले के पास काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग होती है। ये कहकर वो पहली गई, मगर कल फिर वो गुजरी तो उसने गुजरते गुजरते मुझसे पूछा कि अभी तक दुकान नहीं खुली। मैंने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। मैंने सोचा कि आज खुदा कर तुमको आगाह कर दूं। जुनेद की बातों से तशवीश तो मुझे पहले ही होने लगी थी, मगर जब उसने सराइकी लहजे की बात की तो तब मेरा ध्यान डॉक्टर खान की साली अरोश वर्मा की जानिब चला गया, क्योंकि वो भी अरसा दराज से मुल्तान में रह रही थी और मुल्तान की ज़बान भी सराइकी ही थी, क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो जिस इलाके में ज़्यादा अरसा रहा हो वहाँ के कल्चर और ज़ुबान की झलक इसमें नज़र आने लग जाती है। इसलिए मुझे काफ़ी शिद्दत से शक गुजरने लगा कि ये अरोश वर्मा ही हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर खान की बेगम को मैंने एक दफ़ा देखा था जब वो डॉक्टर मुनीब के साथ दुकान पर आई थी। इसके फिगर में और जुनेद के बताए हुए फिगर में बहुत फ़र्क था, क्योंकि डॉक्टर खान की बेगम, जिसका नाम जिया वर्मा बताया गया था, इसका जिस्म थोड़ा भारी था और उसकी उम्र भी 30 साल से ऊपर थी, जबकि जुनेद के मुताबिक आने वाली लड़की समाट होने के साथ 25 साल के लगभग थी। अब अरोश वर्मा को तो मैंने कभी नहीं देखा हुआ था जो उसकी शक्ल देखकर इसे पहचान जाता, इसलिए मामला संगीन होने के साथ साथ अब मजीद मोहतात होने का हो गया था। अब मुझे इस मामले पर गुलरेज खान से बात करनी पड़नी थी। कुछ देर में मुख्तलिफ अंदाज में जुनेद को कुरेदने की कोशिश करता रहा कि शायद कोई और पॉइंट बात लग जाए जिससे मेरा शक यकीन में बदल जाए, मगर जुनेद इतना ही बता सका जितना वो पहले बता चुका था। मैंने जुनेद को कहा कि अगर वो लड़की दोबारा आए तो क्या तुम मुझे फौरी तौर पर आगाह कर सकते हो? जुनेद बोला, हाँ मैं सामने वाली दुकान से तुम्हें कॉल करके बता दूंगा, मगर इतनी देर में वो लड़की शायद उधर से निकल जाएगी। जुनेद की बात सुनकर चंद लम्हे सोचने के बाद अचानक एक ख्याल आने पर मैं चौंक कर बोला, इसका एक आसान हल है। जुनेद बोला, क्या? मैंने कहा, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। जुनेद इस बात में सर हिलाते हुए बोला, यार मेरी शादी हो चुकी है, जो शनाख्ती कार्ड के बगैर थोड़ी हुई थी। मैं मुस्कुराते हुए बोला, हल ये भी ठीक हो गया। ये कहकर मैंने जेब से कुछ पैसे निकाल कर जुनेद को पकड़ाते हुए कहा, ये पैसे पकड़ो और तुमने आज ही बैंक जाकर अभी वापस जाते ही तुमने एक मोबाइल लेना है और अपने नाम पर सिम निकलवानी है। मोबाइल हर वक्त तुमने अपने पास रखना है। जब भी तुम्हें वो लड़की नजर आए तुमने मुझे फौरी तौर पर कॉल करके आगाह करना है, बल्कि अगर मुमकिन हो तो तुम इस वक्त तक लड़की का इस अंदाज में ताकुब करते रहना कि इस लड़की को तुम पर शक भी ना हो कि तुम उसका पीछा कर रहे हो और वो तुम्हारी नज़रों से ओझल भी ना हो। जुनेद मुझे पैसे वापस करते हुए बोला, यार ये पैसे तुम रख लो, मेरे पास पैसे हैं, मैं ले लूंगा। मैं जुनेद को घूरते हुए बोला, तेरे मेरे पैसों में कोई फ़र्क है जो तुम ऐसी बात कर रहे हो? ये कहकर मैं उठते हुए बोला, मैं तुम्हें अपना पर्सनल मोबाइल नंबर ले कर दे देता हूँ, तुम जब मोबाइल ले लो तो वो नंबर मोबाइल में सेव कर लेना। ये कहकर मैंने कागज़ पर नंबर लिखकर जुनेद को पकड़ा दिया। कुछ देर बाद जुनेद इजाज़त लेकर रुखसत हो गया।
जुनैद को रुखसत करते वक्त भी मैंने इसे एहतियात से सारा काम करने की ताकीद की और साथ ही इस बात से भी सख्ती से मना कर दिया कि अब वो मेरे घर ना आए। जब भी मुझसे मिलना हो मुझे कॉल कर देना, खुद इससे मिलने आ जाऊंगा। घर ना आने की वजह भी इसे समझा दी कि कहीं तेरी वजह से इसकी जान को खतरा ना हो जाए, इसलिए इसे मना कर रहा हूं। जुनैद को रुखसत करने के बाद मैं अपने कमरे में आकर बेड पर लेटकर जुनैद के पास आने वाली लड़की के बारे में सोचने लग गया। कुछ देर सोचने के बाद दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना अभी इस मामले पर गुलरेज खान से मशवरा कर लूं। ये ख्याल आते ही मैंने जेब से मोबाइल फोन निकाल कर गुलरेज खान को कॉल मिला दी। दूसरी जानिब से गुलरेज खान दो आवाज़ सुनकर सलाम दुआ लेने के बाद मैंने गुलरेज खान को जुनैद के पास आने वाली लड़की के बारे में तफसील से बताया। मेरी सारी बात सुनकर चंद लम्हों की खामोशी के बाद गुलरेज खान बोला, यासिर लाला, तुम फी अलहाल जुनैद को मना कर दो कि लड़की का पीछा करने की गलती ना करे, क्योंकि अगर वो वाकई अरोश वर्मा हुई तो इसकी छठी हिस्स ने फौरी तौर पर जुनैद की हरकत को नोट कर लेना है, क्योंकि अरोश वर्मा एक ट्रेनिंग याफ्ता लड़की है। इसलिए जुनैद कितना ही होशियार होने के बावजूद भी इसके पास भी नहीं होगा। अभी फौरी तौर पर तुम ये काम करो और बाकी की बातें कल मिलकर करेंगे। ये कहकर गुलरेज खान बोला, कल तुम आ रहे हो ना? मैंने कहा, हाँ जी लाला, कल सुबह 10-11 बजे मैं घर से निकलूंगा। गुलरेज खान मुस्कुराते हुए बोला, यासिर लाला, हमारे शोबे में 10 बजे का मतलब 10 बजे ही होता है। मैंने मुस्कुराते हुए बोला, जी लाला, मैं समझ गया, 10 बदम भी का मतलब 10 बजे होगा। गुलरेज खान बोला, यासिर लाला, घर से निकलने से मेरे पास पहुंचने तक रास्ते में आने जाने वाली फर्द की नकल और हरकत पर रखना है कि कोई तुम्हारा पीछा ना कर रहा हो। मैंने कहा, लाला ऐसे ही होगा। मेरी बात सुनकर गुलरेज खान ने दुआएं कलिमात कहकर कॉल बंद कर दी। राब्ता मुनक़ते होने के बाद मैं जल्दी से मोबाइल फोन पर हाजी साहब का नंबर मिलाने लगा, फिर ये सोच कर रुक गया कि कुछ देर बाद करूंगा, क्योंकि अभी शायद जुनैद रास्ते में ही हो। मोबाइल एक तरफ रख कर मैं टेक लगा कर बैठे फिर से इस लड़की के बारे में सोचते हुए कयास आराइयां करने लगा। लड़की के मामले से सोच हट कर घर वालों से इजाज़त लेने आ फिर उनको कोई मुअस्सर जानदार बहाना लगाने के बारे में सोचने लग गया, जिससे उनको शक भी ना गुजरे और वो मेरी गैर मौजूदगी से परेशान भी ना हो। कुछ देर बाद में